You can respond me. I have unmuted everybody. Good morning, sir. To chat. Yes, you can directly talk to me. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Everybody is unmuted. Okay, children. Hello, children. Shall we start? Yes, sir. Okay. Today we'll discuss the next parameter, that is next bond parameters. Polarity and dipole moment. Dipole moment, children. Polarity of bond and dipole moment. Okay, children. Did you want? So, for example, yeah, suppose, no, please maintain background silence. Background silence. So, this is a molecule, and you know del negative and del positive. So, this is a polar molecule. Yeah, polar bond. Now there is no confusion till now. अभी तक कोई कंफ्यूजन है इसको पोलर बॉन्ड बोलने में बच्चों? No, sir. ठीक है, ओके, पोलर बॉन्ड. अब हम लोग आखिर पोलर बॉन्ड है तो उसको जानेंगे ना कि आखिर पोलैरिटी कितना है. पोलर से वर्ड आया है पोलैरिटी. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ पोलर नेचर, okay, can be known as polarity. Please maintain silence. Polarity, children. Okay. Okay, and next is, I will unmute. See one polarity is expressed in form of dipole moment. Polarity, dipole moment. Did you understand, children? Polarity is in form of dipole moment. Okay, mu is the symbol of dipole moment. How much more is the dipole moment, more is the polarity, more is the polarity, more is the polar nature. The sequence is like this. Okay, next. Okay, next what we can write? We can write, so dipole moment. Dipole moment is equal to, depends upon two things. Okay, bond length and charge on any one end. Only the magnitude of charge, no sign is required. Okay, only magnitude of charge is required. Any one end, because both the opposite end will have same charge. In short, we can write like this: mu is equal to okay, mu equal to D into Q. This is the formula we have to remember. Okay. Okay. So now, Sir, resonance we have did. Resonance we completed the morning times. You are not watching, I think, proper lectures. Sir, that BPC one still not was. Didn't get time.
Okay, I will send. That's why you are not getting time. Okay, just see everything is I am explaining. Go through each and every. See the date and time. Attend all the daily 4 hours chemistry class is there. Sir, how 4 hours? Sir, 2 hours. No, 4 hours. See, one is MPC, Yes, sir. one is BIPC. Yes, sir. And So 2 evening classes. yeah, 2 evening classes. So 4 Sir, but classes are 4 classes I are am for for, June. yes, sir, but I am from the MPC no. That's why attending. Okay. MPC is there, no. So up to till now every classes same thing is going on. Same chapters are going on. Oh, Did you understand? yes, sir. That's why if you go through all 4 lectures per day, you will understand more valuable things. Okay, sir. Right. So unit of mu means dipole moment is d by or simply we can write capital D children, capital D. Okay, if somebody asks Okay, what sir. is the a unit of dipole moment, what you have to say from today onwards? D. Hello, Yes, sir. what you have to say from today onward? What is the unit of dipole moment? D by. D by D and by what is the letter to denote it? D. Capital D. Capital D. And you have to remember one more thing. 1 d by equal to, okay, 1 d by equal to, note it down the value, it is very important value, 3.3 into 10 to the power minus 30. 3.3 into 10 to the power minus 30. Okay, coulomb and meter. This is coulomb. Coulomb is the unit of charge. So this is Yes, charge, sir. children, and this is the distance in meter. So this is SI unit. Any problem? No, sir. Okay. Next. C is charge. C is equal to coulomb. Please maintain silence in the background. Meter. Next, one more value is there, children. Okay, that is 1D equal to 10 to the power minus 18. 10 to the power minus 18 to static unit. This is the charge unit into, okay, into centimeter. This is in which system? CGS system. Please remember it. Please remember it. Sir, what is that? ES? ESU means Sir, electrostatic unit. So in whichever unit they want, we have to use accordingly. sir, this CGS system is this one is the CGS Please system come of the SI nearer, unit, na? nearer to the mic. Nearer to the mic. Hello, sir. Huh? Sir, I was asking that this CGS, this 1D equals to 10 to the power minus 18 is the CGS system of that SI unit 3.3 into 10 to the power minus 30. Yes. Oh. Huh. Next is dipole moment is a vector quantity. Okay. Mu. Okay. Mu, because direction is required. It is a vector quantity. It
It is a means it importance of direction is also very important. Okay. Okay. And yeah, it is represented as like this, children. Whenever you write like this, means you are expressing the vector quantity dipole moment in vector quantity. Okay, children? Okay, sir. Yeah. Where cross sign, wherever this cross sign is there, no children, it is suppose positive charge. And where is this arrow? It means negative charge. Negative charge. So suppose if you want to express dipole moment in SCL, you have to tell like this, that some dipole moment is there. Did you understand now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. And it is a vector quantity. Vector quantity means if the direction is opposite, it will be cancelled. That is why it is used. If the direction of two dipole moments are opposite to each other, they will cancel each other. Okay, children, make a note. So what? That in polyatomic molecules, okay, net dipole moment is sum of all dipole moment of sum of dipole moment of all bonds. You understand? Did you understand what this sentence means? Yes, sir. If yes, yes. अगर नहीं तो नहीं बोलो. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Sir, आया समझ में? sir, explain once more. तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, तुरंत समझ में आ जाएगा. ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देखे हो ना? हाँ. तो C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O. यहाँ पर क्या है बच्चों? ये देखो, यहाँ पर क्या है? ये देखो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ एक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ एक डाइपोल मोमेंट है. समझ गए? हाँ, सर. हेलो? हाँ, सर. और दोनों का डाइपोल मोमेंट Yes, sir. सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में? Opposite direction. तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 हो गया. इस आधे पार्ट में डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अगर पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट देखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. उम्मीद करते हैं समझ में आया. तो फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ सामने माइक के सामने आके बोलो, तब सुनाई देगा मेरे को. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर भी डिपेंड करता होगा. वही तो यहाँ उसका लिखा हुआ है. structure इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द नेट डाइपोल इज द सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड्स. अब ऑल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पर बॉन्ड है, कौन कौन से डायरेक्शन में, सब ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो शेप पढ़ाया जा रहा है. Yes, sir. आ गई बात समझ में? हाँ सर. ओके. सर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम से या एकदम सेंट्रल एटम से देखा जाता है बेटा. ओके सर. ओके, क्योंकि सेंट्रल एटम ही मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सराउंडिंग एटम पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है. ओके. ओके, चलो एक और चीज लिख लो. कैलकुलेशन ऑफ
इसको कहते हैं रिजल्टेंट या नेट डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, हाँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो इसके लिए देखो एक काम करना पड़ेगा, कुछ कुछ मैं लिखा रहा हूं, इसको अच्छा से नोट डाउन करते जाओ। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल है ए और यहाँ पर है बी और यहाँ पर एक बॉन्ड है सी, ठीक है। तो इसमें मान लेते कोई डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ एक क्या कर रहा है, ఆగుతున్నాడంటే इधर देखो, यहाँ మా వాడు डाइपोल। దెబ్బలకు ఆగుతున్నాడు అంటే Oh విడిపించేవాడు my లేడు God. బ్రదర్. ఏం చేస్తాము, కొడుతూ ఉంటారు పడుతూ ఉంటారు, కొడుతూ ఉంటాడు పడుతూ ఉంటాం, కొడుతూ ఉంటాడు పడుతూ ఉంటాం. सबको म्यूट मत कीजिएगा, जो हो रहा है उसी को कीजिएगा। श्रीनिवास सर, प्रिंसिपल सर। तो अब देखो बेटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये मॉलिक्यूल है बेटा, है ना। इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बोलो तो, सेंट्रल एटम का या सराउंडिंग का? सेंट्रल एटम का। बट अभी देखो तो यहाँ पर देखा था, ये सेंट्रल एटम है, तब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका मतलब O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। तब अभी मैंने कहा था कि सेंट्रल एटम का जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। तभी तो इतने सारे सराउंडिंग एटम, हाँ, बिकॉज ऑफ दैट ओनली सराउंडिंग एटम्स आर देयर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओनली, दे नीड इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके सर। ओके। और इनके बीच में कोई एंगल वगैरह भी बन सकता है, कोई एंगल थीटा टाइप से कुछ भी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, उसका एक बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया हुआ देखो, और वो है ये देखो, रूट ओवर, मान लेते ये एक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। ये एक डाइपोल मोमेंट है, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, ओके। प्लस 2 डाइपोल मोमेंट 1 इंटू डाइपोल मोमेंट 2 और कॉस थीटा कर दो, कॉस थीटा, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये सब एक स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर आ जाएगा। ये आप लोग फॉर्मूला जान गए होंगे अभी तक, कोई ना कोई ब्रांच में पढ़ाया होगा, एनी हाउ, ठीक है। बढ़े आगे, हाँ सर। ओके। कॉस 180 डिग्री कितना होता है बेटा? cos 180 तो -1। श्योर ना? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा चेक करके बताना मेरे को, ओके। हाँ सर, -1। ठीक है, ओके। ये तो वेक्टर का हो गया है। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो ये वर्ड यूज किया ना कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहाँ लिखा है देखो, हाँ वही तो ये वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका सबका वैल्यू दिया जाएगा तो निकाल लेना, और क्या। जब सबका वैल्यू दिया जाएगा तो उतार लोगे, ठीक है। हाँ सर। और ये फार्मूला यूज, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा या डाइपोल दिया जाएगा? ये तो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट दिया जाएगा। ओ, उसका वैल्यू, अच्छा। हाँ, उसका वैल्यू दिया जाए, अगर वैल्यू दिया जाएगा तब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, हाँ सर। ओके। हाँ, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है।
एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे ही मस्ती करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। चलो एक काम करो तो, है बेटा, हेलो, हाँ 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 थोड़ा क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मस्ती करते हैं। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कीजिए ये जो μ1 है ना, ये मान लेते हैं 2 है, ठीक है। ये नोट करना है। हाँ लिखना है, लिखना है। अगर सही हो, पहले देख लो, अच्छा हो जाएगा तब नोट डाउन करना, नहीं तो काट देंगे। ठीक है सर। हाँ सर। μ2 भी 2 है, μ2 भी 2 है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ ये भी 2 है, ये भी 2 है, खाली डायरेक्शन में चेंज है। और डायरेक्शन कितना है, थीटा कितना है, 180 डिग्री। जरा सा यहाँ पर पुट करके देखो तो कितना आएगा, चेक करो तो। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, है बेटा, अनडिफाइंड। सर 0 होगा सर। 2 इंटू 2, क्यों, cos 180 कितना होता है, -1। माइनस है। -1 होता है। हाँ तो माइनस हो जाएगा ना। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये सब वैल्यू माइनस में चला जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ -1 कर देते हैं, तो +8 हाँ ऐसा करते हैं। 4 और 4 कितना हो गया, 8 होता है। 8, 8 माइनस 8 0। 8 माइनस 8 0, 0 आया कि नहीं आंसर। हाँ सर, मतलब 0 कोई का स्क्वायर, dipole 0 का moment स्क्वायर रूट कितना होता है, नहीं। 0 ही होता है सर। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। हाँ सर। तो अब उतार लो। उतार दिया। समझ में आ गया बात। हाँ सर आ गया। हाँ सर, एक हाँ मिनट से उतारने दीजिए। उतार लो, उतार लो। पक्का ना, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। हाँ सर। हाँ -1। सर। हाँ सर। ठीक है। and cos 0 1 डिग्री, हाँ 1 1 cos 0 1। 1 होता है। अगर ये 1 हो जाता तो इधर भी 8 हो जाता, इधर भी 8 हो जाता ना, 8 8 16 हो जाता, 4 आ जाता सब। तो आंसर 4 आ जाता, मतलब 4 आ दोनों एक जाता। डायरेक्शन में हो जाता। समझ में आया बात, दोनों। एक डायरेक्शन में हो जाता ना। हाँ अगर 0 डिग्री बता रहे हो, 0 डिग्री का मतलब हाँ ए, मतलब और ये बी, एक और ये डायरेक्शन बी। है। और जब आप इसको घुमा के यहाँ ले आते हो तो ए इधर बी, ए बी दूसरा भी बी, तो दोनों हाँ तो एक ही तरफ काम कर रहा है ना, तो 8 हो गया कि नहीं। हाँ हाँ सर। सर। 8 या 4 जो भी हो, 2 2 मिलकर जो भी हो, हल्का हल्का कुछ कुछ फीलिंग्स आ रहा समझ में अब। हाँ यस सर। चलो उतारो। ये कौन सा वेक्टर है बोलो तो, इसको क्रॉस वेक्टर बोलते हैं या डॉट वेक्टर बोलते हैं। ये वाला जो चीज लिखे थे, कौन सर ये तो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट है ना। हाँ सर। हाँ इसमें क्रॉस डॉट का कोई मतलब नहीं है ना। ना। नहीं चलो सर। चलो भैया, चलिए लिख लिया आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट्स, इसको कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, तो क्या क्या चीज के बारे में आइडिया देता है देखो। तो ये डाइपोल मोमेंट ना हमको आइडिया देता है आइडिया अबाउट
जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। देखो तो पूरा केमिस्ट्री में ऐसा नहीं लग रहा है एटम और मॉलिक्यूल्स ही पढ़े जा रहे हैं हम लोग। हाँ तो केमिस्ट्री में शुरू में ही कहा था, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस सर। और क्या डिटरमाइन करने देता है ये, तो पोलैरिटी का आइडिया लगा देता है। ओके, पोलैरिटी से हमें आइडिया आता है, मालूम है किसका? सॉल्युबिलिटी का, ठीक है, स्टेबिलिटी का, बहुत सारा आगे काम आएगा हम लोग को। स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी कैसे यूज करेंगे हम बताएंगे। ओके सर। Differentiate between, okay, symmetrical and unsymmetrical molecule। सर ये डाइपोल मोमेंट बताता है? हाँ, डाइपोल मोमेंट ये सब बताता है, चिल्ला के नहीं बताता है। थर्मामीटर लगाते हैं तब उसमें जो वैल्यू आता है देख के बताते हैं कि इसको फीवर है। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। अच्छा हाँ, थर्मामीटर से चेक करके कभी बोले हो, थर्मामीटर बोला है कि जिस पेशेंट के मुंह में थर्मामीटर घुसेड़े हो उसको बुखार है, ऐसा कभी बोला है? नहीं सर। लेकिन मालूम है आपको, आने वाले समय में मैं तो बोल रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप एक काम करो, बोलने वाला थर्मामीटर बनाओ। जिसको समझ में नहीं हम आए लोग हाँ, आप लोग बनाइए एकदम। हेलो, हाँ सर। आप लोग हाँ, एक पार्ट बोलने लेकर- वाला, आप लोग एक बोलने वाला थर्मामीटर बनाओ बेटा। जब प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा ना साइंस में, हाँ सर। तो एकदम बोलने वाला थर्मामीटर बनाओ। ठीक है सर। ठीक है, कुछ हेल्प चाहिएगा तो मैं कर दूंगा। हाँ सर। ठीक है, मटेरियल्स लगेगा सर। हाँ, हम लोग बनाएंगे ना, बहुत मजा आएगा मालूम है। प्रोजेक्ट वर्क में, साइंस का प्रोजेक्ट वर्क करेंगे ना तब काम आएगा। आरती घोष, सर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मतलब है, देखो अब जैसे CO2 है हाँ सर। और H2 है, देखने में दोनों का फार्मूला सेम जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ रहा है, लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 0 है, ये इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। दोनों के जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, तो सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल नहीं है। समझ में आया बात? हाँ सर समझ गया। हाँ, एक कोई बच्चा है जो रेज हैंड कर रहा है, लेकिन मैंने बेटा सबको अनम्यूट करके रखा हुआ, बात करो हमसे। सर हम एग्जांपल सर, देने को ओके, बोल सर। रहे थे सर। ठीक है सर। हेलो, हाँ सर। सर चलो बढ़ू आगे। हाँ सर। हाँ ओके, जैसे सिमेट्रिकल होगा ना तो उसमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा, अनसिमेट्रिकल होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो ये सबसे फैसला हो जाएगा। सर। नेक्स्ट हम लोग और क्या क्या देख सकते हैं? एक बात बोले बेटा, जैसे वाटर का वही हम लोग को डाइपोल मोमेंट दे दिया है 1.85 डी बाई, ठीक है? इसमें तो नॉट इक्वल टू 0 बता ही रहा है ना, तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। हाँ तो अगर वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.85 डी बाई है, तो डी बाई का वैल्यू मैंने कितना बताया था अभी थोड़ा देर पहले? 3.3 into 10 to the power minus 30
सेंटीमीटर सॉरी कूलम मीटर बताया था कि नहीं? हाँ हाँ सर। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। मतलब इतनी बड़ी जगह की जगह आपने किसका इस्तेमाल किया? कैपिटल डी। और आ गई बात समझ में? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो। एन है, एच है, एच है, एच है, और यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। हेलो, तो हमेशा लोन पेयर का ना जो डाइपोल हाँ, मोमेंट सर। का जो एरो है ना वो बाहर की तरफ दिखाओगे, क्या करना है? सेंट्रल एटम से बाहर की तरफ। बाहर का तरफ कोई भी डायरेक्शन में। हेलो बेटा, हाँ सर। लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो एरो बाहर तरफ दिखाओगे, सेंट्रल एटम से बाहर तरफ। ओके हाँ सर। सर। ठीक है, और अब देखो ये एन और एच बॉन्ड है, एन एच बॉन्ड। तो अब इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। हाँ सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो यहाँ एक डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, यहाँ एक डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, यहाँ एक डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, और लोन पेयर भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब इसका डाइपोल, चारों बॉन्ड, लोन पेयर और बॉन्ड सब मिलकर एक के तरफ से मोटा मोटी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है बेटा। हाँ सर। ठीक है, और अब देखो एन, ठीक है, फिर यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, ठीक है। अब इसमें ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करोगे तो Cl क्लोरीन ज्यादा और है। नाइट्रोजन का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर ये उतना अच्छा से डाइपोल मोमेंट नहीं शो कर पा रहा है, उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा, ठीक है। Cl का थोड़ा सा ज्यादा था ना। नहीं, सर, हाँ सर। नाइट्रोजन का ज्यादा है बेटा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ज्यादा है सर। क्योंकि ना उसका फेवर फैक्टर क्या हो जा रहा है, एटम छोटा है ना उसका। हाँ सर। हाँ, इसीलिए उसको फेवर फैक्टर मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है उसको, ठीक है। ओके सर। ओके, मान लेते एक 10 साल का स्टूडेंट था, ठीक है, उसको भी एक मैथ का क्वेश्चन पेपर दिया, और एक 20 साल का स्टूडेंट था, उसको भी एक क्वेश्चन पेपर दिया, ठीक है। हेलो, ठीक है। हाँ दोनों सर। को सॉल्व करने के लिए दिया, दोनों 100 में 100 ले आया। हाँ सर। प्राइस किसको दिया जाना चाहिए? एक ही प्राइस है। 10 साल वाला। छोटे वाले को, 10 साल वाले को। आ गया बात बड़े समझ वाले में? को। हाँ किसको सर। देना चाहिए? छोटे वाले को। छोटे वाले को। छोटे वाले को। आप समझ में 10 आया? साल वाले को। हाँ, क्योंकि उसका हाँ सोचो अभी छोटा में वो ये हाल किया, तो जब 20 साल का होगा तो पता नहीं क्या करेगा। हाँ सर। ओके, हाँ, अब देखो यहाँ एक और चीज दिखा रहा हूँ, एन, यहाँ फिर लोन पेयर है, और यहाँ पर ना एफ है, एफ। तो अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इसका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो इधर जा रहा है, और इसका इधर जा रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन का, समझ गए? हाँ सर। तो बताइए इसमें सब मिलजुल के काम कर रहे हैं क्या? एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? नहीं सर। इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, तो ये जो नक्शा मैंने दिखाया है, शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे NH3 का डाइपोल मोमेंट NCl3 से ज्यादा है और NF3 इनमें सबसे कम है। ये सब याद रखोगे बेटा। ओके सर। सर ये आप फिर से एक बार समझा सकते हैं? क्यों फिर से क्यों समझाएं? आप पहले क्यों नहीं ध्यान दिए? सर ध्यान दिया सर। एक कुछ तो ध्यान दिए तो confusion है। प्रॉब्लम पूछो कि कहां पर, कौन सा में प्रॉब्लम आया, कौन सा में? NH3 में, NCl3 में, या NF3 में? NCl3 में। NCl3 में क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है मालूम है आपको? 3.4 होता है, 3, और इसका 2.1 होता है।
हेलो, हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर पोलारिटी ज्यादा हो गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तब यहाँ पर नाइट्रोजन का भी 3.0 है और क्लोरीन का भी 3.0, तो लगभग थोड़ा मतलब एकदम हल्का सा क्लोरीन का बचे, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा नहीं है ना, नहीं सर। तब इसलिए कम हो गया। समझ में आ रही बात? तो डाइपोल मोमेंट खाली किसके चलते हो गया? लोन पेयर के चलते। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर तो एक ये डाइपोल मोमेंट इधर काम कर रहा है और ये तीनों लोग तो उल्टा डायरेक्शन में काम कर रहा है। हाँ सर। तो मैंने हाँ, सर। क्या कहा? मैंने क्या कहा? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा तो कम ना हो जाएगा। देखो यहाँ तो 0 ही हो गया। सर NH3 और NCl3 हाँ, के सर। बीच में डिफरेंस क्या है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, 4.0 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। समझ में आया? हाँ सर। बट तो सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने का अलग हो गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इस तरह से पूछा करो बेटा। नेक्स्ट और क्या दिया जाए? जिसका ज्यादा है वो कीजिएगा। आज कितना बज गया? कितना बजा अभी? 41 है बेटा? 338 सर। 338 कुछ, हाँ। 40 ठीक है देखो। ओके, मतलब सिमेट्रिकली बताता है ये भी। डिस्टिंग्विश cis and trans isomers. cis and trans isomers. ओके। अब ये क्या है सर? ये मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल रहेगा, उनका फार्मूला सेम रहेगा लेकिन थोड़ा डायरेक्शन वगैरह चेंज रहेगा। तो उनका हेलो, ट्रांस क्या होता है? क्या सीस और ट्रांस क्या होता है? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। जब सिमिलर ग्रुप, ये केमिस्ट्री में तो स्टाइल से भरा पड़ा, आपको तो शुरू से मालूम है। हाँ सर। ठीक है, तो जब कभी बताना पड़ता है कि सिमिलर ग्रुप्स आर इन सेम साइड, बाबू ध्यान दो, सिमिलर ग्रुप्स आर इन विच साइड? सेम साइड। तो उसको स्टाइल से कहते हैं सिस, और ऑपोजिट साइड को ट्रांस। वाह, आधा आपको खुदे को समझ में आ गया। समझ में आ गई बात? हाँ। हाँ सर। अब देखो, और वैसे मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, समय आने दो। अब देखो अभी जो मैं समझा रहा हूँ जस्ट समझ लो, इशारा कर रहा हूँ। देखो मैं 2 मॉलिक्यूल बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, एक तरफ H है, ठीक है, एक तरफ H है, एक तरफ Cl है, एक तरफ Cl है, एक तरफ H है, एक तरफ H है, एक तरफ Cl है, एक तरफ Cl है। अब देखो इसको देखो ऐसे मिडिल लाइन देखो, बताइए ये H सिमिलर साइड में है कि नहीं? हाँ सर। इसको क्या बकोगे? सिस। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। आ गई बात समझ में? हाँ सर। अब देखो, अब असली कहानी सुनो। अभी असली कहानी देखो, हाइड्रोजन से डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, हाइड्रोजन से डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, और कार्बन से डाइपोल मोमेंट तो इधर जा रहा है, कार्बन से डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है। ठीक है? हाँ सर। तो समझ में आई? हाँ सर। तो इसका मतलब है इस केस में डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। क्योंकि सब लोग घुमा फिरा के
ऐसा नहीं लग रहा है सब लोग लेफ्ट से राइट जा रहा है? हाँ सर हाँ सर ओके, लेकिन यहाँ देखो ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ, देखो ऐसा नहीं लग रहा है ये और ये एक दूसरे को लग रहा है कैंसल कर रहा है? हाँ सर हाँ सर या ऐसा नहीं लग रहा है देखो ये और ये एक दूसरे को कैंसल कर रहा है बेटा? हाँ हाँ सर सर तो यहाँ पर नेट डाइपोल Dipole मोमेंट moment कितना हो zero. जाएगा बेटा? Zero. जीरो। जीरो 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 जीरो। समझ में आया बात? हाँ हाँ सर सर हाँ सर। ऐसा ये सब तो कोई बोल दे कि भाई दो मॉलिक्यूल ऐसा है, देखो देखो ऐसा दे दे, इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसा लिख दे, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl2 है, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl2 है, और इसमें कह दे डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 और इसमें कह दे डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और पता करने बोले कि इसमें कौन सिस है कौन ट्रांस है, तो क्या बोलोगे? सर जो नॉन जीरो है वो सीस है, जो जीरो है वो ट्रांस है। वो ट्रांस है। जो नॉन इक्वल टू 0 है वो है वो वो सिस। सिस है, और जिसमें जीरो है cancel वो हो गया ट्रांस। ट्रांस आया है। बात समझ में? हाँ हाँ सर सर। ऐसा नहीं लग रहा बड़ा खतरनाक खतरनाक चीज समझ रहे हैं हम लोग? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो, लिख उतारते जा रहे हो कि नहीं? हाँ सर करते हैं। कोई डाउट होने से पूछोगे, कोई डाउट होने से पूछ पास दोगे हमको, हम सब बता देंगे। एकदम डरना नहीं, एकदम फ्री होके पढ़ना है एकदम। ये 3 बजे वाला क्लास में एकदम डाउट क्लियरेंस क्लासेस है सब। ठीक है, बढ़ू आगे? हाँ सर हाँ सर हाँ सर। ओके, तो अब देखो एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक मॉलिक्यूल होता है उसको बेंजीन कहते हैं, ठीक है? हाँ कहते हैं, ये सब स्ट्रक्चर तुम लोग भी बनाओगे, चिंता मत करो, सब काम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ एक Cl है और यहाँ एक Cl है, ठीक है? यहाँ एक Cl है, यहाँ एक Cl है, यहाँ एक Cl है, यहाँ एक Cl है, ठीक है? चलो। हाँ, ये हाँ, जहां सर। जहां पर देख रहे हो सब कार्बन है जिससे सटा हुआ है, वो सब स्टाइल बोले ना, केमिस्ट्री में स्टाइल भरती है। फैशन है बहुत। अब बहुत फैशन है भाई, पढ़ाने वाले लोग बिना फैशन के होते हैं इसमें, इसका लेकिन सब्जेक्ट बहुत फैशन है। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब बताओ इनमें कौन सा ऐसा है जिसमें थीटा 180 डिग्री है बेटा? थीटा 180 डिग्री, लास्ट वाला लास्ट थर्ड वन। लास्ट वाला में थीटा जो है 180 डिग्री है बेटा। समझ में आई बात? हाँ सर। सर जीरो ठीक है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर में देखो जो डाइपोल, कितना अच्छा समझ रहे हो तुम लोग। अरे तुम लोग अच्छा समझ रहे हो या मैं अच्छा से समझा रहा हूँ? सर दोनों सर दोनों। दोनों ही। वेरी नाइस, दोनों दोनों। ठीक है, अब देखो दोनों दोनों हाथ से ताली बजती है बेटा, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर ठीक है, अब देखो, और इसको जब खूब इसी वीडियो को खूब देखो कितना मजा आएगा। सर आप अपलोड करेंगे तो? अरे मैं हर डेट का हर टाइम का अपडेट होता है। हाँ वही सर। अब आप लोग देखिए तो सही, खाली सर आप डाल के करते जाइए, देखिए हम लोग यूट्यूब देखते में, जाएंगे। खाली यूट्यूब में आप खाली डाल के देखिए केमिस्ट्री बाय सुभाष सर। हाँ सर मिलता है, सबसे पहले आपका ही नाम मिलता है। समझ रहे, पूरा हरा हरा से बढ़ती रहेगा। हाँ सर अब डालते जाइए, हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा देखो, एकदम टाइम एक एक डेट करके देखो, है ना? हाँ सर डेट वाइज। तो एनी हाउ, अच्छा आज एक बार पुट करके देखना तो डेट, केमिस्ट्री बाय सुभाष सर, और डेट भी पुट करके देखना तो कि पर्टिकुलरली वीडियो आता है क्या? ठीक है सर सर। डेट से नहीं आता है सर। डेट से नहीं आता ना? ठीक है, सर टॉपिक सर डेट तभी आएगा जब आप वीडियो के नाम से डेट देंगे। ठीक है। अब देखो, तो अब देखो इसमें इसमें क्या हो रहा है मालूम है? इसमें यहाँ इधर डाइपोल मोमेंट है, इधर डाइपोल मोमेंट है। बताओ थीटा 180 डिग्री है या थोड़ा कम हो गया? थोड़ा कम कम हो है। गया थोड़ा सर, कम कम हो है गया सर। और कम हो जाएगा तो आपको तो मालूम है डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा और कम हो गया। हाँ हाँ सर सर तो इन हाँ, सर। तीनों में अगर कोई पूछे कि
किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है जी? पहला वाला। लास्ट वाला पहले वाले पहला का, वाला। फिर इसका, फिर इसका। किसको किसको बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई सर। ठीक हाँ है। सर, आ गई सर। इसको वैसे इसका नाम है 1,2 हाँ, सर। डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके हाँ सर सर 1-4 क्या अच्छा। पोजीशन है? ना, पोजीशन है बेटा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नोमेनक्लेचर में और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके अच्छा Yes, sir. अच्छा, वैसे इसका ये वाला जो 1 2 रहता है ना, तो इसका एक कॉमन नाम आपको और स्टाइल बता देते हैं, ऑर्थो भी बोल सकते हो। ऑर्थो। 1-4। दोनों क्लोरीन कहाँ पर है तो बोलना ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है। अच्छा और तो हाँ, अरे अगर एक को छोड़ करके है तो बोल देना मेटा पोजीशन पे है, मेटा। बेटा META। अच्छा और अगर मान लेते हैं दो को छोड़ करके है, दोनों के बीच में 2 कार्बन का दो। गैप है, तो बोलना पारा, हाड़ा। है ना। तरीका है बेटा। हाँ याद आ सर। गया? हाँ सर। बहुत सही है। ओके, बढ़ू आगे। हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, सर 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट बाकी है। देखो 2 मिनट में ऐसा लिख देते हैं, इसका म्यू वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जब ज्यादा बताए हैं तो इसका मतलब 2.53 डी बाई इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है बच्चों, इसका वैल्यू है 1.48। ये वैल्यू सब याद नहीं किया जाता बेटा, है ना। सब मेरे सामने रखा हुआ है, इसीलिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ये तो 0 ही हो गया, समझ में आई बात? हाँ अच्छा किए सर बता दिया। हाँ, ये वैल्यू याद नहीं रखना पड़ता, हम लोग को नहीं याद है, बताओ। इतना वैल्यू थोड़ा है। थोड़ा याद है, ऐसे थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। करते करते याद हो जाएगा। हाँ, करते करते याद हो जाएगा। चलो इसमें बताओ, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? देखो तो 0 होगा, क्या होगा? तो एक डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल नहीं है, हाँ हाँ सर सर, ये इक्वल नहीं होगा। CL नहीं है ना। हाँ सर। हाँ तो Yes, डाइपोल sir. मोमेंट इज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू 0। ये भी याद रखना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप भी सेम होना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। यस सर। हम्म, इक्वल होना चाहिए। हाँ इक्वल होना चाहिए। और एक एग्जांपल लो तब, जल्दी जल्दी करो, देखे कौन बताता है मेरे को। टड़ाक टड़ाक, टक 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 इतना टक 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 जल्दी टक बना टक। दे। जल्दी जल्दी बनाओ। C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, OH, ठीक है। यहाँ पर OH मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है यहाँ पर? SH, SH, यहाँ भी SH, ठीक है बेटा। तीनों का 0 होगा। क्या क्या कर तो सकते हैं तीनों का ही बताओ? 0 होगा। तीनों का 0। ठीक है, बढ़ो आगे। हाँ सर। तो एक्चुअल में ना ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, हाँ सर। ये अगर इसको पूरा को एक प्लेन माने तो ये प्लेन से ऊपर है और ये प्लेन से नीचे है, तो एकदम सिमेट्रिकल नहीं है। इसलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल Not टू equal to 0. 0। लेकिन सर यहाँ वापस से पर, बताइए सर एक बार। हाँ बोलो। ये जो सर वापस से मॉलिक्यूल है ना, बताइए। सारे एटम्स एक ही प्लेन में है, तो इसको कहते हैं प्लानर। तो ये पूरा कैंसल हो जा रहा है, समझ गए? एक डायरेक्शन और ये पूरा डायरेक्शन कैंसल हो रहा है, ठीक है। प्लेन में भी रहना जरूरी है 0 हाँ, प्लेन में भी हमने बोला ना इक्वल होना चाहिए, अभी बताया ना कि इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो इक्वल का मतलब है सब चीज में इक्वल होना चाहिए, जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ गड़बड़ा जाएगा। अच्छा Okay, sir.
हाँ, ये सब भी याद रखना है। और दूसरा वाला कोप्लेनर। ठीक है बेटा, ये आज इतना ही रखें। हाँ सर। ठीक है सर। कितना बच गया? 351। चलो आज इतना ही रखो 351 बेटा, सर। आज इतना ही रखो। मेरे को बाय बाय कर ओके। देना, जिससे कि मैं